السلام علیکم، میرے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ایک بہت پیارا سا ناول آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں، جس کا نام ہے دا باڈی گارڈ، رائٹر مہوش علی۔ اس کی قسط نمبر 1 آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو پھر چلتے ہیں ناول کی طرف۔ رات کی سیاہی ہر طرف پھیلی نیلے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی، اور اس سیاہ تاریک آسمان پر سفید چمکتے جگنو اپنی اپنی جگمگاہٹ کے ساتھ ماحول کو اپنے حصار میں گھیرے ہوئے تھے۔ جہاں ہر کوئی اپنے بستر میں دب کا خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا، وہیں ایک دل دہلا دینے والا منظر کراچی کے مشہور 7 اسٹار ہوٹل کے آنر اجمل جتوئی کے گھر کے لاؤنج کا تھا۔ لاؤنج کے وسط میں رکھی چیئر سے بندھا وہ خوف دہشت سے پیلا پڑ گیا تھا۔ اس کی ہراساں نظریں سامنے دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھر تھر کانپتی اپنی 17 سالہ بیٹی کی طرف تھی۔ اس کی بیوی ان دونوں نقاب پوش کے سامنے ہاتھ جوڑ کر روتی معافیا مانگ رہی تھی، پر ان نقاب پوشوں کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد، سب سے بڑا خواب آج پایۂ تکمیل تک پہنچنے والا تھا۔ وہ کیسے پیچھے ہوتے؟ ناممکن۔ ہلنا نہیں، ورنہ اس کی کھوپڑی اڑا دیں گے۔ ایک نقاب پوش کے آگے بڑھنے پر دوسرے نے عورت کو چوکنا دیکھ کر ہاتھ میں موجود گن اجمل جتوئی کے دماغ پر رکھی، جس کے ہاتھ پاؤں چیئر سے بندھے ہوئے تھے اور منہ پر ٹیپ لگایا گیا تھا۔ دوسرا نقاب پوش سامنے دیوار سے لگی کھڑی چھوٹی سی لڑکی کی طرف بڑھا، جس کی آنکھیں سب دیکھ کر دہشت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ نازک وجود لرز رہا تھا۔ وہ اپنے باپ اور ماں کی آواز پر کمرے سے باہر آئی تھی اور سامنے 2 نقاب پوشوں کو اپنے باپ کو کرسی سے باندھے اور گن ان کے سر پر رکھتے اس کی ماں کی طرف خاموش رہنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر اس کا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ آنکھیں خوف اور دہشت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ ان میں سے ایک کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر اس کی سانس رک گئی۔ مما، وہ خوف سے سسک اٹھی اور روتی اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی، پھر اس دراز قد نقاب پوش کو جو بالکل اس کے سامنے آ کر رکا تھا، بلکہ اس پر کسی سائے کی طرح پھیل گیا۔ میری بیٹی سے دور رہو۔ وہ عورت چیختی اپنی بیٹی کی طرف لپکنے کی کوشش کرنے لگی کہ اسی پل پہلے نقاب پوش نے اس کے شوہر کی ٹانگ کا نشانہ لیا۔ بندوق پر سائلنسر لگا ہونے کی وجہ سے گولی کی آواز ڈھک کی صورت نکلی۔ وہ عورت بل کھا کر مڑی اور اپنے شوہر کی درد سے میچی آنکھیں دیکھ کر سسک اٹھی۔ کیوں کر رہے ہو تم دونوں ایسا؟ کیا بگاڑا ہے ہم نے تم دونوں کا؟ وہ عورت روتی ہوئی اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی، پر اس کے شوہر نے درد کی پرواہ کیے بغیر سامنے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، جہاں وہ نقاب پوش کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ سب اپنی بیٹی کے لیے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ایک باپ کے لیے مرنے کا مقام تھا۔ اس لڑکی کے سامنے کھڑے نقاب پوش نے انگلی اٹھائی اور پھر بولا، نام کیا ہے تمہارا؟ بھاری روبدار آواز پر وہ سانسیں روک کر روتی اپنے باپ کو دیکھنے لگی، جو اسے کمرے میں جانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ پھر اس کی نظریں اپنے باپ کی ٹانگ سے رشتے خون پر گئی۔ منہ کھول کر وہ چیخنے کی کوشش کرنے لگی تھی، اس سے پہلی نقاب پوش نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ نام کیا ہے؟ اب کی بار اس کی آواز میں غصے کے ساتھ ایک عجیب سی غراہٹ بھی تھی۔ وہ بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ وہ بول نہیں سکتی حیوانوں۔ اس کی ماں اپنا سر پکڑتی نیچے بیٹھ گئی۔ نہیں بول سکتی وہ؟ اس درد بھری آہ پر اس نقاب پوش کو جھٹکا لگا۔ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ پل بھر کا شاک تھا، پھر وہ نظریں پھیر گیا۔ اجمل جتوئی پھڑ پھڑاتا خود کو کھولنے کی کوشش میں نڈھال تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا ابھی ان کے برے سایوں کو نوچ کر اپنی معصوم بیٹی سے دور پھینک دے۔ انجلین، گھمبیر لہجے میں سرگوشی سی کی۔ انجلین آنکھیں پھیلا کر اس نقاب پوش کو دیکھنے لگی۔ اسے کیسے معلوم اس کا نام؟ سوچ کر وہ روتی پھر سے اپنے ماں باپ کو دیکھنے لگی۔ اس کی ماں کبھی اپنے شوہر کو دیکھتی تو کبھی اپنی بیٹی کو۔ شوہر کی طرف جاتی تو وہاں اس نقاب پوش کو پاتی، بیٹی کی طرف جاتی تو بھی دوسرے نقاب پوش کو پاتی۔ آخر بے بس عورت جاتی کہاں؟ انجلین التجا کرتی آنکھوں سے دیکھتی پلیز پر سرخ لبوں کو حرکت دینے لگی۔ یہ دیکھتے ہی اجمل جتوئی چلایا، اسے چھوڑ دو، ہم سے بدلہ لو، ہم نے جو کیا اس کے لیے ہمیں مار دو۔ یہ معصوم بچی ہے، جانے دو اسے۔ اس کی ماں روتے ہوئے ہاتھ جوڑے منت سماجت کرنے لگی۔ اجمل جتوئی یہ سب دیکھتا اس نقاب پوش کی انگلیاں اپنی بیٹی کی گردن کی طرف جاتے دیکھ کر ضبط نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ جان گیا تھا وہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ کتنا چھپایا تھا اس نے اپنی بیٹی کو، دنیا سے غائب کر دیا کہ کہیں اس کا برا سایہ اس پر پڑ جائے۔ اتنا چھپانے کے بعد بھی وہ نہیں چھپ سکی اس سیاہی سے۔ وہ بپھر کر کرسی کو جھٹکے دینے لگا۔ سامنے کھڑے نقاب پوش نے اس کی حالت کو دیکھتے مسکرا کر اس کے بازو پر نشانہ لیا۔ انجلین اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ پر گولیاں چلتے دیکھ کر حواس کھو کر لہراتی زمین پر گرتی۔ اس سے پہلے سامنے دیو کی طرح کھڑے
इस नकाब पोश ने इसे बाजू से पकड़ लिया। ये सब देखती इसकी माँ तड़प कर रह गई। छोड़ो इसे, अल्लाह का वास्ता छोड़ दो। इसे अपनी बेटी को लेकर कमरे की तरफ बढ़ते देखकर वो औरत रोती हुई गिड़गिड़ाने लगी और वो आदमी कुर्सी की पोस्ट से सर टकराने लगा। वो नकाब पोश मुस्कुराता इसके नाजुक रूई से भी हल्के वजूद को बाहों में भरे कदम उठाता कमरे में आया। पहले तो सिर्फ मालूमात इकट्ठी की थी जिसमें इस नासमझ परी को पढ़ा था। ये नहीं मालूम था कि वो मासूम छोटी सी परी बोल भी नहीं सकती। अब इसे सामने पाकर वो हैरान था कि अपने नाम की तरह कोई इतना मासूम होता है। वेट फॉर मी एंजेलिन, जहान नाम है मेरा, जल्द आऊँगा तुम्हें लेने। नकाब हटाकर इसके मासूम चेहरे पर बिखरे बालों को देखते फूंक मारकर पुरस्कार से मुस्कुराहट उनाबी लबों पर सजाए नजरें इस परी चेहरा पर डालकर वहाँ से चला गया। पर नकाब लगाना नहीं भूला। कौन हो तुम दोनों? वो अब तक कई बार ये लफ्ज़ दोहरा चुकी थी और अब इस नकाब पोश को जल्दी से अपनी बेटी के कमरे से वापस आते देखकर खुदा का शुक्र अदा करती उनसे बोली। सिक्योरिटी कोई नहीं थी जो इन्हें रोकती। उनके इरादों से अचानक से आए थे और इसके सोए हुए शौहर को घसीट कर इस शोरो गुल से साथ वाले रूम से इसकी बेटी भी फिर उठकर आ गई थी। उन्होंने इसके शौहर को बेड से नीचे फेंकते बाहर लाए पहले से रखी चेयर पर बांध दिया था। इसकी बेटी को बाहर देखकर जहाँ इन दोनों मियाँ बीवी की सांसें अटक गई थी खौफ से, वहीं इनमें से एक इसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। 7 स्टार होटल वाला अड्डा किसका है? नकाब पोश गुर्राया और इसके शौहर के सामने खड़ा पहला नकाब पोश खूनखार नज़रों से अजमल जतोई को देख रहा था। अजमल जतोई की आंखें फैल गई। समझ गए दोनों साथ दहाड़े और इन दोनों की सांसें खुश्क हो गईं। इस औरत ने मलामती नज़रों से अपने शौहर को देखा। इन दोनों को मालूम था इसकी बीवी इस हकीकत से वाकिफ़ है। अब वो औरत अपने शौहर को देखती उठ खड़ी हुई। मैंने कहा था तुम्हें कि तुम्हारे स्याह काम ज़रूर एक दिन तुम्हारे सामने आएंगे और आज देख लो, तुम दौलत से मौत को नहीं लौटा सकते। इसकी बीवी रोती हुई कहती हारे हुए वजूद के साथ वहाँ से चली गई और अपनी बेटी के कमरे में जाकर दरवाज़ा लॉक कर दिया। तुम्हारा खेल ख़त्म अजमल जतोई। वो दोनों प्यासी नज़रों से इसे देखते गन इसके सर पर तान गए। तुम दोनों हो कौन, ये तो बताओ। जान जाने के खौफ से रोते इसने कहा था। तो दोनों ने बेक वक्त एक दूसरे की तरफ देखा। जहान, इसके दाईं तरफ वाला भारी रोबदार आवाज़ में बोला। जहांगीर, फिर बाईं तरफ वाला तमस्खुर से गोया हुआ। साथ ही दोनों ने बेक वक्त ट्रेगल दबाए। फिर इसके सीने पर एक दूसरे को मुस्कुराते देख कर निशाना लिया। एक बार फिर से ट्रेगल दबाया। इसके दाएं बाएं से गोली लगती इसका सीना चीर गई और वह साकित सा पड़ा रहा। दौलत काम नहीं आई, अफसोस से कहते दोनों एक बार फिर इसकी खुली आंखों पर फायर किया और इसके सीने पर लात मारते इसे पीछे फेंक कर वहाँ से निकल गए। पर दाईं तरफ वाला मुड़कर बंद दरवाजे को देखना नहीं भूला। आज तुम्हें मुझसे वहशत हो रही थी, कल मुझसे नफ़रत होगी, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें यह हक ही नहीं दूंगा कि तुम नफ़रत करो। तुम मेरी हो, मेरी रहोगी एंजेलिन। अपनी सोच के साथ लबों पर पुरस्कार तबस्सुम सजाए जहांगीर के पीछे बाइक पर बैठा और वो इस परी के शहर के हदूद से निकलते दूर चले गए। हमारे प्लान में लड़की को बीच में लाना शामिल नहीं था। आगे बैठे जहांगीर ने जिताया तो वो मुस्करा दिया। हाँ, पर अब ज़िंदगी की प्लानिंग में शामिल हो गई है वो। इसके साथ ही दोनों के खुली फ़ज़ा में कह कहे गूंजे। वो कुछ पुरसुकून हुए थे। बस अब आखिरी। अल्लाह तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। तुम एक हैवान शैतान हो। जब तुम्हारा मकरूह चेहरा दुनिया के सामने आएगा तो हर कोई तुम्हें पाँव तले कुचलने की कोशिश करेगा और ख्वाहिश भी करेगा। वो स्याह चादर में लिपटी इस बड़ी सी इमारत से निकली जहाँ एक रात में इससे सब कुछ इसका छीन लिया गया था। इसकी इज्जत, गरूर, इसका मान, वक़ार इसी एक रात की स्याही में रोन डाला गया था। वो स्याह घनी पलकों वाली सुर्ख आँखें उठाई इमारत की हदूद से दूर आकर नीले आसमान को देखने लगी। आसमान की वसअत को देखकर इसकी आंखें छलक पड़ी। या अल्लाह, नीज़ तो नाबूद करना इसे, बुलंदियों से गिराना, टुकड़ों में तकसीम करना इसे। मेरी आबरू को नोचा है इसने, कुचल देना मेरे मालिक, जिसकी वजह से मैं इज़्ज़त से सर उठाकर जी नहीं सकती। मेरे मालिक, इन हैवानों का बुरा अंजाम करना। वो रोती हुई सड़क के किनारे खड़ी हो गई। तेज़ रफ्तारी से भागती गाड़ियों को देखती आंसू बहा रही थी। मुझे माफ़ करना, मैं तुम दोनों का सामना नहीं कर सकती। मैंने जो ख्वाब तुम दोनों के लिए देखे हैं इसे ज़रूर पूरा करना। ख़ुद को कभी अकेला मत समझना। मैं तुम दोनों के साथ हूँ, हमेशा तुम दोनों की धड़कनों में रहूँगी। वो कहती आसमान को देखती फूट फूट कर रोने लगी। इसकी धड़कनें तेज़ हो रही थीं। दिल जिस्म के हर पोर में धक धक करने लगा था। तुम दोनों में मेरी सांसें बसती हैं। भले ही दुनिया से मेरी सांसों का रिश्ता ख़त्म हो जाए, पर तुम दोनों में मैं हमेशा ज़िंदा रहूँगी।
वो अपनी सफ़ेद कलाइयों पर नीले उंगलियों के निशानात देखती सामने सड़क को देखने लगी, जहाँ बेशुमार गाड़ियाँ एक दूसरे को कुचल कर भागने की कोशिश में थीं। वो पल में मुस्कुराती सिसकती नज़रें वहाँ से हटाकर अपनी मुट्ठी में कैद नोटों की गड्डी पर डाली। अगले ही लम्हे इस गड्डी को इसने कोई सांप बिच्छू समझकर नीचे फेंक दिया और रोते हुए कदम सड़क की तरफ बढ़ाए। ए लड़की, कहाँ जा रही हो? मरना है क्या? पीछे से दहाड़ गूंजी, जिस पर इसने अपने पाँव की रफ्तार तेज़ कर दी। इसकी धड़कनें दो मासूम चेहरों को सामने घूमता पाकर सारे वजूद में धड़क रही थी और इसके स्याह नैन कटोरे बरस रहे थे। या अल्लाह, इन पर अपना साया रखना, इसने बुड़बुड़ाते पीछे से चीखों पुकार से हरासा होकर एक तरफ दौड़ लगा दी और अगले ही लम्हे फ़ज़ा में दिल खराश चीख बुलंद हुई। एक आह सी निकली। अल्लाह, एक सिसकी थी। मेरे मालिक। आसमान पर टिकी आंखों ने सदा लगाई। अगले ही लम्हे इस वजूद को फड़कते देखकर खौफ से फ़ज़ा में चीखों पुकार मच गई। अब जब भी मैं चाहूँगा तो मेरे कॉल पर दौड़ी चली आओगी, वरना ये देख रही हो, ये तुम्हें दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगा। सिवाय मेरी बाहों में आने के तुम सर उठा नहीं सकोगी। आसमान पर टिकी आंखें बंद हो गईं और गुलाबी पंखड़ियों से नाजुक लबों पर पुरसकून मुस्कुराहट फैली। ये झूला सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया गया है स्ट्रा, और तुम्हें सिर्फ मुझे झुलाने के लिए बनाया गया है बैरी, वो कहती खिलखिलाकर हंसी। पीछे खड़ा वो भी इस सच को जानकर मुस्कुराया। इसमें कोई शक नहीं बैरी, सिर्फ स्ट्रा का है। वो पीछे खड़ा इसे झल्लाता मोहब्बत से इसके गोल्डन बालों को देखता बोला, और किसी का भी नहीं, अगर होगा तो मैं स्ट्रॉबेरी खाना छोड़ दूंगी। कहने के साथ इसकी खूबसूरत आंखें डबडबा गईं। ओहो स्ट्रा, रोते नहीं मेरी गुड़िया, बैरी किसी का नहीं, सिर्फ तुम्हारा है। भला बग़ैर स्ट्रा के बैरी मुकम्मल हो सकता है? नहीं ना। ये दोनों मिलते हैं तभी मुकम्मल होता है वजूद स्ट्रॉबेरी का। वो इसके सामने आता, इसके साथ झूले पर बैठ गया और अपनी छोटी सी 2 पोनियों वाली कांच से गुड़िया का चेहरा हाथों के प्याले में भरा। प्रॉमिस। इसने अपना सुर्खों सफ़ेद हाथ आगे किया। वो इसके हाथ को देखता मुस्कुरा उठा और हथेली को अपने लबों से लगाया। ता हयात प्रॉमिस। उबैद अंकल, मुलाजिम ताज़ा स्ट्रॉबेरी लाया है, छोटे से हाथों से आंखें रगड़ती बोली। बैरी ने इतला मिलती आंखें मीच कर हलक से कड़वा घूंट उंडेला। नो। इसके सुर्ख लब फड़फड़ाए। बेचैनी से देखती अपने तवक्को के मुताबिक लफ्ज़ सुनकर भड़क उठी। तुम मेरे लिए सारी ज़िंदगी खड़े होकर झूला झुलाने के लिए तैयार हो, पर सिर्फ एक स्ट्रॉबेरी नहीं पसंद कर सकते बैरी? इसकी चीख पूरे लॉन में गूंजी। नाक के छोटे से नथने फूलने लगे और इस आवाज़ पर सामने बैठे अफराद कहकहा लगा उठे। स्ट्रा, तुम्हें मालूम है मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, ये मेरा गला ख़राब कर देती हैं। प्लीज़। वो बेबसी से सामने बैठे अफराद को देखता, फिर इसकी जानिब रुख करके परेशानी से बोला। नो आई कांट, तुम खाओगे, बस खाओगे। इट्स माई ऑर्डर। इसने हतमी फ़ैसला सुनाया, जिसके बाद बेबस लाचार सा हो गया। सामने बैठे अफराद इसकी हालत से लुत्फ़अंदोज़ होने लगे। अंकल जाएं, फ्रेश यम्मी सी स्ट्रॉबेरी लाएं, 20 मेरी 20 बैरी की। वो इसके हाथ उठाकर सामने 10 उंगलियां इसकी तरफ दिखाती हुक्म देती हुई बोली। इस कदर शदीद जुल्म पर इसने मदद के लिए दूसरी तरफ बैठे अफराद की तरफ देखा, जिन्होंने फ़ौरन नज़रें फेर ली कि जैसे ज़िद्दी बनाए वैसे भुगतो। एक को इसकी हालत पर रहम आया, वो उठा भी मदद के लिए, पर दूसरों ने आंखें दिखाईं, जिस पर वो वापस बैठ गया और फ़ज़ा में मर्दाना रोबदार आवाज़ गूंजी। इस पर यह बारावर होने दो कि इसे यह एहसास भी होने दो कि इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़र्ज़ हमारी गुड़िया को खुश रखना है। फिर चाहे इसमें से कितनी तकलीफ़ क्यों ना पहुँचे, इसे खुश रखना, इसकी खुशी पर अपनी खुशियाँ वारना, इसे मुस्कुराते रखना ही इसकी ज़िंदगी है। वरना बेशक आज ही अपना नाम बदल दे। छोटी छोटी कमज़ोरियों पर पीछे हटने वाली हमारी गुड़िया की लायक नहीं। ये रोबदार अटल लहजा वहाँ के मकीनों के सबसे बड़े का था, जिसकी वो औलाद था, और अपनी औलाद से ज़्यादा इसे घर की गुड़िया अजीज़ थी। इसके हुक्म पर सब खामोश हो गए, क्योंकि वो सरबराह था सबका और इसके हुक्म से कोई मुँह नहीं फेर सकता था। अब सब सामने देख रहे थे, जहाँ वो दोनों प्लेट में स्ट्रॉबेरी को उठा उठा कर खिलखिलाते हुए खा रहे थे। और इसकी माँ जानती थी कल सुबह वो बिल्कुल बोलने के काबिल नहीं रहेगा दर्द से, पर इसकी स्ट्रा खुश थी, तो बैरी कैसे खुश ना रहता। तुम मेरे दोस्त के साथ पार्टी में जाओगी कि नहीं? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, हाँ या ना? रात के दूसरे पहर कमरे की फ़ज़ा में दबी दबी आवाज़ में गुर्राहट गूंजी। मैंने आखिरी बार भी कह दिया कि मैं तुम्हारे इस कमीने दोस्त के साथ हरगिज़ नहीं जाऊँगी। अगर तुमने मुझ पर अब मज़ीद जोर दिया तो मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ से ही चली जाऊँगी। वो खूबसूरत सी औरत इससे ज़्यादा गुस्से में बोली। ऐसा करके तुम अपनी मौत को खुद दावत दे रही हो। बफरा हुआ शेर बना था, पर वो औरत भी कम नहीं थी, ना ही बुज़दिल थी जो इसकी धमकियों से डर जाती।
तुम मर जाओगी, ज़ाया हो जाओगी मेरे हाथों। इसने चोटी से पकड़कर खींचकर इसे बिठाया। तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे? और जाकर मेरी तरफ से अपने इस दोस्त के मुंह पर थूक देना। मेरी तरफ से ना है, ना है, ना है, क़यामत तक ना ही रहेगी। मैंने अपने शौहर के सिवा किसी मर्द की तरफ नहीं कभी देखा। मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। कुछ देर गंभीर खामोशी के बाद इस आदमी की आवाज़ गूंजी। इन अल्फाज पर इस खूबसूरत सी औरत की आंखों में नमी आ गई और लबों पर तल्ख मुस्कुराहट फैल गई। पहले अपना पेट तो भरने लायक बनो, मेरे टुकड़ों पर पलते हो, आए बड़े तलाक देने वाले। तमस्खुर से कहती वो हंसी, और इसके शौहर पर यह हंसी बारूद बन कर बरसी, पेचो ताप खा कर रह गया। मैं तुम्हें मार दूंगा, ये 2 टके कमाने का ज़ौम है ना, मिट्टी में मिल जाएगा। वो गुर्राया। शौक से इसकी बीवी खनकदार हंसी के साथ बोली। इसका शौहर इसकी पीठ को घूरता मोबाइल उठाकर वहाँ से निकलता चला गया। कुछ दिन बाद मॉम, कैब से निकलकर इसने अपने बेटे को स्कूल ड्रॉप किया जब इसके बेटे ने अपनी माँ को देखते हुए इसे पुकारा। यस माय हार्ट बीट। बैग कंधे पर लटका इसने झुक कर इसके माथे पर लब रखे और मोहब्बत भरा बोसा दिया। मॉम आई लव यू। इसने किसी एहसास के तहत ये कहा, वो नहीं जानता था। पर अपनी माँ का आज इससे दूर जाना बिल्कुल उसे पसंद नहीं आ रहा था। वो चाहता था इसकी मॉम इसके पास रहें, इसके दिल के बेहद करीब। मी टू माई हार्ट बीट। आज जल्दी जॉब से लौटूंगी तो साथ डिनर पर बाहर चलेंगे, ओके? इसने बच्चे के गाल थपथपाए। वो खुशी से मुस्कुराता सर हिला गया। डैड चलेंगे हमारे साथ? इसके लहजे में तड़प थी जो एक माँ का कलेजा नोच गई। ट्राई करेंगे, अब जाओ ताकि मैं तुम्हें जाते हुए देखूं। फिर मॉम जॉब पर रिलैक्स होकर जाएं और शाम को जल्दी लौटें। इसके कहने पर दूसरे बच्चों के साथ सर हिलाता अंदर बढ़ गया और वो मुस्कुराती हुई मुड़ी। मॉम, पीछे से फिर पुकार आई। इसने मुस्कुराते गर्दन मोड़ी तो वो बंद गेट के इस पार खड़ा इसे देख रहा था और माँ के देखने पर इसने फ्लाइंग किस दी और बाय करता अंदर भाग गया। वो मुस्कुराती मोहब्बत से नफ़ी में सर हिलाती जाने लगी। वो एक कंपनी में जॉब करती थी। इस जॉब से मिलने वाले पैसों में से कुछ पैसे अपने बूढ़े माँ बाप को देती थी, कुछ से वो घसीट कर अपना घर चलाती थी। शौहर तो इसका बस नाम का था। सोचों में गुम मौत इसके ताक़ुब में थी, पर वो अनजान थी, महसूस ही ना कर सकी मौत की बू को। अचानक ही वो मोबाइल की बेल पर रुकी और मोबाइल निकाल कर अपने शौहर का नंबर देखती हैरान सी कॉल ओके करती कि अचानक से पीछे आती गाड़ी इसे दूर फ़ज़ा में उछाल गई। आह! एक दिल खराश चीख फ़ज़ा में गूंजी। पकड़ो इसे। तेज़ रफ्तारी से जाती कार के पीछे गश्त पर मौजूद 2 पुलिस वाले जो कि एक बाइक पर थे इसके पीछे गए, पर वो गाड़ी काफ़ी दूर निकल चुकी थी। आगे जाकर वो गाड़ी रुकी तो इसमें से एक आदमी निकला और वहाँ से भागता एक गली में घुस गया। पुलिस वालों ने भी इस गली के नुक्कड़ पर अपनी बाइक खड़ी की, पर दूर दूर तक इस आदमी को कोई अता पता ना मिला। वो कार की जानी मुड़े। अचानक ही फ़ज़ा में ब्लास्ट हुआ। वो दोनों दूर जा गिरे और एक आखिरी सबूत भी मिट गया। तो मुझे ऐसे नहीं छोड़कर जा सकती। वही आदमी जो कुछ दिन पहले से मारने, तलाक देने की धमकियां दे रहा था, आज अपनी बीवी का मुर्दा वजूद सीने से लगाए दहाड़े मार रहा था। मैं छोड़ूंगा नहीं इसे जिसने मेरी बीवी को मारा है। क्या बिगाड़ा था इसने किसी का? रोता हुआ वो इसके वजूद को खुद में भींच गया। वहाँ मौजूद हर आँख इसकी दहाड़ों और आहों पर अश्क बाल थी। वो छोटा वजूद जो घर खुशी खुशी लौटा था, अब सिसकियाँ भरता सोफे के पीछे छुपा ज़रा सा सर निकाल कर अपनी माँ के लहू लुहान वजूद को देखता, फिर छुप कर मुँह पर हाथ रखता चीखे अपने गले में ही घोंटने लगा। कर दिया मैंने अपना शौक़ पूरा डार्लिंग। एक सरगोशी सी इस मुर्दा वजूद के कान में गूंजी। फिर से चीखों और आहों का सिलसिला शुरू हुआ। मुझे माफ़ कर दें डैड, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। नीचे कालीन पर पड़ा वो सिसकता हुआ दोनों हाथ जोड़कर कहता, अपने नाजुक से वजूद पर ठोकरे झेलता लहू लुहान सा माफ़िया मांग रहा था। इसे मालूम था इसने इनकार करके बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, पर वो किसी का दिल नहीं तोड़ सकता था। शट अप बास्टर्ड, तुम मुझे इनकार करोगे? मुझे? अपने बाप को? वो दहाड़ा और झुक कर इसके बालों को मुट्ठियों में जकड़कर इसके कांपते हुए सूजे पाँव पर खड़ा किया। दर्द से इसकी सिसकी सी निकल गई। मॉम प्लीज़ सेव मी मॉम। इसने अपना सर झुकाते अपने बंधे हुए हाथ सामने कर दिए। हाथों की उंगलियां जूतों के कुचलने से छिली हुई थी। मुंह बंद करो मॉम के चमचे। इसकी अपनी माँ के लिए पुकार सुनकर सामने वाला और बिगड़ गया। पहले से ज़्यादा बेदर्दी से इसके बालों को झटका दिया। वो लड़खड़ा गया। दर्द से इसके मुंह से चीख निकल गई। जवाब दो, करोगे जो मैं कहता हूँ? इसका झुका चेहरा ऊंचा करते वो दहाड़ा। 3 दिन से भूखा प्यासा वो मासूम इसे अपनी सोजी आंखों से देखने लगा। ये इसका बाप था? क्या बाप ऐसे होते हैं? ये कौन सा रूप था अपनों का? जवाब दो। एक बार फिर इस आदमी की गुर्राहट गूंजी। बनोगे जो मैं कहता हूँ?
इसे अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाओगे? लाओगे इसे इस घर में? पूछने के साथ इसे झटके से नीचे फेंका। वो सिसक कर रह गया। इसे घुटनों के बल बैठने पर वो खिसक कर दूर होने लगा कि इस आदमी ने इसकी टांग में अपनी सख्त उंगलियां गाड़ कर इसे अपनी तरफ खींचा। वो रोता हुआ फना होते वजूद के साथ घिसटता इसकी तरफ खिसक कर आया। इसने प्यास से बंजर होते अपने लबों पर जुबान फेरी और सूखे खुश्क हलक को तर किया। जब इस आदमी ने इसके जबड़े को मुट्ठी में भींचा, एक दिल दहलाने वाली चीख बुलंद होती घुट कर रह गई तकलीफ से। खाना चाहिए? शैतानी आंखों में चमक लिए वो पूछने लगा। इस बच्चे ने सिसकी ली। जी। इसने रोते हुए शदीद भूख से सर इस बात में हिलाया। बहुत भूख लगी है डैड। तो फिर हाँ क्यों नहीं करते? कह कहा लगाते अचानक वो दहाड़ा और उठकर लाई हुई पानी की बोतल मुंह से लगाई कि वो रोता हुआ प्यासी नज़रों से पानी को देखने लगा। डैड, प्यास भी लगी है। इसने धुंधली सी नज़र को मसला और ज़्यादा देर बैठ ना सका तो वापस निढाल सा गिर कर अपने बाप को हलक से उंडेलते पानी को देखता रोता रहा। हाँ कहो, फिर तुम्हें पानी दूं और ये खाना भी। वो मुस्कुराया और इसके सामने शॉपर में पैक खाना किया। वो मचल कर उठ बैठा। डैड, वो नाराज़ होगी। वो बहुत प्यारी है। वो मुझसे बहुत प्यार करती है। मुझे खाना देती है। मैं कैसे इसके साथ ऐसा करूं? वो रोता हुआ पानी की बोतल को देखता हुआ बोला। यही कमज़ोरी है इसकी, तुम फ़ायदा उठाओ। इसे बताएगा कौन कि तुम क्या चाहते हो? तुम इसके दोस्त बनकर रहो, इसके सबसे अच्छे दोस्त। फिर जब तुम बड़े हो जाओ तो इसे लेकर यहाँ आ जाओ। वो आदमी यकदम इसके पास आया और इसका चेहरा थाम कर समझाते हुए बोला। वो कभी अपने बाप को देखता तो कभी पानी को। वो नाराज़ नहीं होगी? इसने नाक से बहते खून की लकीर को साफ किया। नहीं, इसे बताएगा कौन कि तुम क्या चाहते हो? चमकती आंखों से बोला। इसकी कमज़ोरी देखते इसने फिर पानी की बोतल को लबों से लगाया और वो छोटा सा लड़का हलक तर करने लगा। वो मुझे बुरा नहीं समझेगी? इसने रोते हुए अपने बाप की आंखों में देखा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो मुस्कुराया। अच्छा, तुम सोच कर मुझे बताओ, मैं इंतज़ार करता हूँ। वो नफसियाती इंसान इसका गाल थपथपा कर जाने लगा। बच्चा इसके पानी की बोतल खाने का शॉपर साथ ले जाने पर तड़प उठा। डैड, पानी। रोता हुआ इसकी जानिब खिसक कर आया। इस आदमी ने मुस्कुराते इसे देखा। पहले जवाब दो। ठीक है डैड, मुझे पानी दें। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। मुझे खाना भी दें। वो रोता हुआ सर झुकाकर बोला और फूट फूट कर रोने लगा। इस आदमी की बाछें फैल गई। शाबाश मेरा शहज़ादा, यही उम्मीद थी मुझे अपने शहज़ादे से। वो आदमी खुशी से पागल होता इसे नीचे से उठाकर अपनी बाहों में भर गया और लेकर बेड पर लेटाते इसके बाल संवारे। डैड, पानी। वो सिसक उठा। हाँ हाँ, अभी लाया। इसके माथे पर बोसा देते वो आदमी नीचे से भागकर बोतल उठा लाया और इसके लबों से लगाई। इस छोटे से 13 साला लड़के ने रोते हुए सारी बोतल पी डाली। वो आदमी खुशी से बेहाल खुद ही निवाले बनाता इसके मुंह में डालने लगा। अब तुम्हारी ज़िंदगी का एक ही मकसद है जो तुम्हें पूरा करना है। अपने बाप के ख्वाब दुनिया को मेरे जूते की नोक पर लाना है, समझ गए? वो रौब से बोला। वो अपने बाप को देखता रह गया और फिर इसके सर हिलाने पर वो आदमी झुक कर इसके सर पर बोसा देते इसके मुंह में निवाला डालने लगा। जब तक आप थी मॉम, तब डैड तो ऐसे नहीं थे। आपके जाने के बाद मैं अकेला हो गया और डैड मुझे बिल्कुल ही भूल चुके हैं कि मैं इनका बेटा हूँ। बेटे के साथ तो कोई ऐसा नहीं करता, इसे तो प्यार करता है ना। मासूम दिल ही दिल में अपनी माँ से मुखातिब था। मैं दवाई लाता हूँ, फिर मेरे बेटे को दर्द भी नहीं होगा। इसका बाप बात करता हुआ दवाई लेने चला गया। आप हैवान हैं, कातिल हैं। मैंने सारी बातें सुन ली हैं आपकी और मैं सब कुछ पुलिस को बताऊंगा। आपको और आपके साथियों को मौत की सज़ा मिलेगी हैवानों। सुर्ख आंखों से लाउंज में खड़ा हुआ दहाड़ा और इसकी बातें सुनकर सिगार के गहरे कश लेता इसका बॉस पहले शौक हुआ, फिर इसने एक बुलंदो बाग कह कहा लगाया। तो मेरे बॉडीगार्ड हो, सिर्फ बॉडीगार्ड। उन्होंने इसकी हैसियत औकात जिताई। यही मेरी ताकत, मेरी पहचान, इस बात की गवाही और ठोस सबूत है कि मैं आपका बॉडीगार्ड आपके कितना करीब हूँ और आपके शैतानी चेहरे से वाकिफ़ भी हो गया हूँ। कैसे दुनिया के सामने सफ़ेद भेस में घूमते हो तुम लोग। इसकी गुर्राहट पर सामने बैठा वजूद शीशे की मेज़ को देखता सोचों में डूबा शिकार के कश ले रहा था। कितने पैसे लोगे मुंह बंद करने के? कुछ तवक्कुफ़ के बाद इसके बॉस की गंभीर आवाज़ फ़ज़ा में गूंजी। अब की बार अपने बॉस की औकात देखते वो हंसा। सब बिकाऊ नहीं होते सर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ईमान मजबूत है। आपको और आपके साथियों को जेल के पीछे फेंक कर ही मैं सुकून का सांस लूँगा। वो जिता कर कहता वहाँ से जाने लगा। इसी साथ घबराहट और बौखलाहट में वो वजूद सोफ़े के टेक छोड़कर उठ बैठा। रुको, ठीक है, मेरा अंजाम यही है तो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। तुम खुद मुझे सिलाखों के पीछे देखो और अपने दिल को सुकून दो। इसका बॉडीगार्ड
रोका और पलट कर इसे देखने लगा, फिर वहाँ से निकल गया। इसका अटल इरादा देखकर इस आदमी ने जल्दी से मोबाइल निकालकर इसमें मौजूद एक नंबर पर कॉल की। हमारा शक बिल्कुल दुरुस्त था, इसे सब कुछ मालूम हो गया है, इसने हमारी बातें भी सुन ली थीं। अभी मैं इसके साथ जा रहा हूँ, पुलिस स्टेशन हमारी गाड़ी पर अटैक करवाओ और निशाना मेरे बॉडीगार्ड का लो। हुक्म देते इसने कॉल मुनक़ता कर दिया और सिगार एस्ट्रे में फेंक कर अपने वक्त की बर्बादी पर दांत पीसता इसके पीछे गया, जहाँ पोर्च में इसका गार्ड इसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोले खड़ा था। अभी भी वक्त है, सोच लो, मैं बच सकता हूँ और तुम लखपति बन जाओगे। फिर ना ये टके की नौकरी करनी पड़ेगी और ना ही परेशानी आसपास तुम्हारे फटकेगी। उन्होंने गाड़ी के दरवाजे पर हाथ टिकाते हुए कहा, आप बैठ रहे हैं या मैं जाऊं? बॉडीगार्ड ने गुस्से से कहा। वो कंधे उचकाता मायूस होकर अंदर बैठ गया। ड्राइविंग सीट पर बैठा बॉडीगार्ड खुश था कि इसका बॉस सीधी तरह मान गया है। गुनाह कभी नहीं छुपता सर, एक ना एक दिन अपनी बदबू से सबको मुतवज्जा कर ही लेता है, चाहे आप इसे ज़मीन के 7वें तह तले ही क्यों ना छुपा दें। ये अच्छी बात है कि आपको एहसास हुआ और आप मान गए। अपने गुनाह की सज़ा भुगतने के लिए अब अपने साथियों को भी सामने लाइएगा जो आपके गुनाह में शरीक थे। वो इन्हें समझाने लगा और पीछे बैठा वजूद सोचों में डूबा हुआ था। गाड़ी क्यों रोक दी? वो हैरान हुए अचानक गाड़ी के बीच सड़क पर रुकने पे। लगता है किसी का एक्सीडेंट हुआ है सर, वो परेशान सा कहता बाहर निकला। साथ पीछे बैठा वजूद भी निकल आया। ठा दफतन फ़ज़ा में गोली की आवाज़ गूंजी और बॉडीगार्ड जो मदद के लिए इस हजूम की तरफ बढ़ रहा था, पीछे से आती गोली इसका सीना चीर कर बाहर निकली। दूसरी ठा के साथ ही वो कलमा पढ़ते मुंह के बल अपने तवाना वजूद के साथ सड़क पे गिर पड़ा। फिर अचानक अंधाधुंध फायरिंग इस आदमी की गाड़ी पर हुई और वो झुक कर घबराता नीचे बैठ गया। हर तरफ चीखों पुकार मच गई। बॉडीगार्ड के मुंह के बल गिरी लाश के करीब से एक बाइक सवार गुजरता सड़क पर पड़े आदमी के पास आया, जिस पर वो छलांग मारकर इसके पीछे बैठा और वो दोनों किसी जहाज़ की तरह वहाँ से भाग गए। कोई एम्बुलेंस बुलाओ, हॉस्पिटल ले चलो इसे। सड़क के साफ होने पर इसका सर भागकर बॉडीगार्ड के करीब आता दहाड़ कर बोला, सॉरी सर, ये नहीं रहे। इसकी नब्ज चेक करते एक लड़का अफसोस और दुख से बोला। सड़क सुनसान थी, सियाही चारों तरफ में फैली हुई थी। मौत इसके ताक़ुब में थी। वो भाग रहा था, तेज़ तेज़ भागता जा रहा था। आंसू बेतहाशा बरस रहे थे। अचानक इसे रुकना पड़ा। इसके सामने 2 रास्ते थे, एक दाएं दूसरा बाएं। वो दाईं तरफ मुड़ा तो लड़खड़ा गया। जहाँ तुम लड़खड़ाओ वहाँ कभी मत जाना। इसके कान में एक मर्दाना आवाज़ गूंजी। इसने रोते हुए सर हिलाया और बाईं तरफ के घने जंगलात में डूबे रास्ते का इंतखाब कर लिया। ज़िंदगी तेरे लिए। इस रास्ते पर मौजूद छोटे छोटे पत्थर इसके नंगे पाँव में चुभ रहे थे, जिससे इसकी सिसकियाँ बुलंद होती और वो तड़प जाता। पीछे से भागते कदमों की चाप को सुनते ही इसने रफ्तार बढ़ाई और अगले ही पल वो इस स्याही में लिपटी सड़क पर मौजूद इस पत्थर को देख ना पाया और देखते ही देखते लड़खड़ा कर मुँह के बल गिरा। आहें आसमान को छूने लगी। ज़िंदगी हलक में दब सी गई। ज़िंदगी तुम्हें चाहता हूँ, पाँव इतने फैलाओ जितने बिसात हो। यस डैड। वो रोता सिसकता लहू लुहान उठने की कोशिश करने लगा। अभी वो बमुश्किल अपने पाँव पर संभला भी नहीं था कि सामने से आती तेज़ रफ्तार गाड़ी इसके वजूद को फ़ज़ा में बुलंद कर गई। ज़िंदगी तुम्हें हारने लगा हूँ। एक अजियत भरी चीख इसके हलक से निकली और बेड पर पड़ा वो वजूद उछल पड़ा। जैसे तकलीफ़ इसे हुई हो। वो दूर जा गिरा और इसके मुँह से सिसकी सी निकली, हिम्मत कभी मत हारना। इसके बाप की वक्फे वक्फे से बताई गई बातें इसके कानों में गूंजने लगी। स्ट्रा। आंखों के सामने मुकम्मल अंधेरा देखकर वो सिसका और लड़खड़ाकर दोबारा गिर गया। हिम्मत नहीं बची डैड, इसकी चीख गूंजी। ज़िंदगी तुझे हार गए हम। बैरी। बेड पर पड़ा इसका नाजुक वजूद चीखता झपटता हाथ पैर मारने लगा। इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। वो वहशत से चीखें मारती गुलाबी बेड पर पड़ी मखमल की बेडशीट को नोच रही थी। हनी बेटा, होश में आओ। हारिस साहब इसकी चीखों पर भागते रूम में आए और अपनी 11 साल की बेटी को बेड पर फड़फड़ाते उछलते देखकर आगे बढ़ते से बाहों में भर गए। बैरी, बैरी। अभी भी इसके नाम की सदाएं लगाती अंधेरे में डूबी छत को घूर रही थी। आप इसे बेड पर लिटाएं। डॉक्टर भागते हुए कमरे में आकर हारिस साहब से बोले। टेबल पर मेडिकल बॉक्स रखते इसमें से इसे हमेशा लगने वाला इंजेक्शन निकालने लगे। हारिस साहब ने नम आँखों से इसे बेड पर लिटाया और इसके हलक से निकलती खर खर की आवाज़ों पर आंखें मीचते इसके हाथ पांव पकड़ने लगे। इनके पकड़ने पर डॉक्टर दूसरी तरफ से आते इसके बाजू में इंजेक्शन लगाने लगा।
फिर कुछ देर वो किसी ज़ख्मी चिड़िया की तरह फड़फड़ाती रही, फिर आहिस्ता से हचकोले खाता इसका वजूद साकित पड़ गया। मॉम, एक हिचकी सी हलक से बरामद हुई। वो हारिस साहब के ज़ब्त का कड़ा इम्तहान लेती इन्हें अजियतों में धकेल रही थी। ये संभल रही है, आहिस्ता आहिस्ता, हिम्मत रखो। डॉक्टर ने हारिस साहब के कंधे पर हाथ रखा, फिर अपना मेडिकल बॉक्स लिए वहाँ से निकल गए। हारिस साहब ने ढाल से कुर्सी खिसका कर इसके पास बैठे इसके बालों में उंगलियां चलाने लगे। कल इसका निकाह था अपने बचपन के दोस्त हादी से, जिससे इसके कोई जज्बात नहीं जुड़े थे। एक तो अपने बाप की खुशी देखते, दूसरा बचपन से मंसूब होने की वजह से वो हामी भर गई थी। इसकी नज़र में हादी अच्छा शख्स था और ख़ास बात वो बचपन से इसका दोस्त था। इसके नखरे खूब उठाता था। वो अपने हाथों पर लगी सिंपल सी मेहंदी डिज़ाइन को देखती सोचने लगी, इसे जो पहली नज़र में देखता दोबारा पलट कर देखने से ख़ुद को बाज ना रख पाता। गोल्डन शोल्डर कट बाल, दूधिया मैदे सी सफ़ेद रंगत, मासूम नकोश, सुर्ख गुलाबी पंखड़ियों जैसे लब, छोटी सी नाक जिस पे हरदम गुस्सा सवार रहता, और सबसे हसीन क़यामत बर्पा करते इसके हुस्न में इसकी ठोड़ी पर मौजूद गढ़े पे 3 स्याह नुक्ते। वो एक खूबसूरत मुजस्मा थी। वो अपनी ज़िंदगी आप जीने वाली बंदी थी, पर वो जी नहीं पाती थी। इसकी खुशियों का दायरा अपने बाप तक महदूद था। वो होम मिनिस्टर हारिस खान की लाडली बेटी थी, खूबसूरत, अपनी मरहूमा माँ जैसी मिजाज, अपने बाप जैसा रूखा। वो सिर्फ अपने बाप की सुनती थी, या दूसरा अपने अंकल फवाद जो कि हारिस साहब के बचपन के दोस्त थे, उन्हीं की सुनती थी। इसकी ज़िंदगी सिर्फ इन 3 शख्सियत के गिर्द घूमती थी, हारिस खान, फवाद चौहान, बैरी, खोया हुआ वजूद। माँ बचपन में ही साथ छोड़ गई थी हमेशा के लिए। दूसरा कोई था नहीं, ना ही वो ज़्यादा मेल जोल पसंद करती थी। हाँ, कुछ फ्रेंड्स थे यूनिवर्सिटी की और दोस्ती भी थी, पर एक हद तक। खामोश रूम में मोबाइल पर कॉल बेल की मखसूस धुन बजने लगी। कोहनियों के बल उठकर हानिया ने मोबाइल पर चमकते हादी के नाम को देखते कोफ्त से गहरा सांस लिया। जब से निकाह की तारीख रखी गई थी वो पीछे ही पड़ गया था। अजीब से लहजे में चीप चीप बातें करता कि हानिया को गुस्सा आ जाता। वो जानता था कि इसे इस सबसे नफरत है, फिर भी वो ऐसा कर रहा था। आखिर क्यों, ये वो खुद भी नहीं जानती थी। वो चिढ़ जाती, दिल करता जाकर डैड को दिखाए इस चीप इंसान की हरकतें, पर इनका जवाब जो शुरू में हुआ करता था, मैं समझाता हूँ इसे, वो सब्र का घूंट पी कर रह जाती, क्योंकि समझाने का वक्त इन्हें अपने मसरूफ़ शेड्यूल में नहीं मिलने वाला था। क्यों कॉल किया इस टाइम, वो गुस्से से पूछने लगी। दूसरी तरफ हादी हंस पड़ा, अपनी होने वाली बीवी से कुछ मोहब्बत भरी बातें करने के लिए, इन पलों को यादगार बनाने के लिए। वो लफ्ज़ों में मोहब्बत की मिठास भर कर बोला, पर हानिया पे खाक असर न हुआ। इस वक्त जब हानिया की आंखों में नींद भर आई थी, इसकी बकवास सुनकर इसे गुस्सा आ गया। जस्ट शट अप हादी, किस मिट्टी के बने हो, अभी हमारी शादी भी नहीं हुई जो तुम मुझसे ऐसी घटिया गुफ्तगू करो। वो दबे दबे लहजे में बरहमी से गोया हुई। सो वाट हनी, कल तो हो जाएगी ना, अभी मुझे नींद ही नहीं आ रही, और इस वक्त सिर्फ तुम ही हो। सो कुछ दिनों के बाद तो वैसे भी तुम्हें मेरे पास आना है, तो मुझसे कैसी शर्म। बेड ग्राउंड से टेक लगाकर हाथों में कुशन दबोचते हुए बोला। दूसरी तरफ इसके लब्बो लहजे पर हानिया को तो जैसे आग सी लग गई। हनी, इससे पहले कि इसे सख्त सुस्त सुनाती या इसे इसकी औकात याद दिलाती, खुमार ज़्यादा लहजे में बोला। इसकी पुकार पे हानिया के जिस्म में सनसनी खेज लहर दौड़ गई। इसे बेसाख्ता हद इसे घिन महसूस होने लगी। मुझे इस वक्त तुमसे इतनी नफ़रत महसूस हो रही है कि दिल करता है तुम्हारा मुंह नोच लूँ या तुम्हारे चेहरे पे अपनी हील मारकर इसका हशर बिगाड़ दूँ, पर अफसोस कि मैं मजबूर हूँ और मुझे बहकाने की ज़रूरत नहीं है। मैं हानिया हारिस खान हूँ, कोई आम लड़की नहीं। तुम जैसे तो कुत्ते की तरह मेरे आगे पीछे दुम हिलाते फिरते हैं। ये तो मेरी बदकिस्मती है कि इन्हीं कुत्तों में से एक को अपनी ज़िंदगी में दाखिल करना पड़ता है, वरना मैं तुम जैसे 3rd क्लास घटिया इंसान को मुँह भी लगाना पसंद नहीं करती। को जाके निकाह करना, मेरा बस चले तो सुबह ही इनकार तुम्हारे मुँह पे मार दूँ। अंडरस्टैंड मिस्टर हादी चौहान। गम और गुस्से से सारे दिल की भड़ास निकाल कर खटाक से कॉल मुनक़ता की। तकिया दुरुस्त करके नीम दराज होकर अपना बाजू आँखों पे रख लिया। अच्छी तबीयत साफ़ की है आज तो, आइंदा इस घटिया इक़दाम की ज़रूरत नहीं करेगा। वो बुड़बुड़ाई और करवट बदल गई। हादी को गुस्से, नफ़रत और बदले की आँख में छोड़कर पुरसुकून नींद सो गई थी। हानिया मैडम, अकड़ लो जितना अकड़ना है, आना तो मेरे पास ही आना, फिर बताऊँगा तुम्हें तुम्हारी औकात। ख़तरनाक तेरा तेवर लिए इसने सिगरेट सुलगाया। हानिया की बेइज्जती करने पर इसके अंदर एक आग से भड़क उठी थी। वो कौन सा इससे प्यार करता था, बस एक ज़िद थी इसे नीचा दिखाने की। तो मैं तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मौत की भीख मांगोगी हनी डार्लिंग। नफ़रत जहर में डूबा इसका लहजा बहुत दूर की सोच बैठा था।
सियाह तारीख सुनसान सड़क पे इसने अपनी गाड़ी मंजिल करीब आने पे एक साइड पे रोक दी। वो शख्स डैशबोर्ड से पेपर्स उठाकर बाहर निकला। आसपास के सफ़ेद बंगले एक दूसरे पे साया बने हुए थे। वो इसी तारीकी का एक हिस्सा लग रहा था। इस सुनसान सड़क पे वो अपने मजबूत कदम उठाता आगे बढ़ रहा था। अचानक इसकी जेब में मौजूद मोबाइल बजा। हाँ बोलो करीम। लहजा सर्द और ठहरा हुआ था। आप आ रहे हैं? सब कुछ हैंडल कर लिया गया है सर, करीम ने जल्दी से कहा। हाँ पहुंच गया हूँ, इसने कहकर कॉल मुनक़ता की और मोबाइल वापस जेब में रखा। वो चलता हुआ होम मिनिस्टर हारिस खान के मेंशन के सामने रुका और इसकी नज़र इस आलीशान खान इमारत पे पड़ी। जेब में मौजूद पेपर्स थपथपाते हुए बैरूनी दीवार फलांग कर अंदर लॉन में दाखिल हुआ। ब्लैक डॉग्स और गार्ड्स का चारों तरफ पहरा था, पर इसके आदमी सब कुछ हैंडल कर चुके थे, सिक्योरिटी फोर्सेस से लेकर कैमरा तक। इसने बेफिक्र होकर कदम आगे बढ़ाई और सामने मौजूद कमरे की बालकनी के साथ जुड़े हुए पाइप पर चढ़ा। बहुत आहिस्ता से किसी चीते की तरह पाइप पे चढ़ते बालकनी में छलांग लगाई। वो बआसानी इसके कमरे तक पहुंच गया था जिसका इसके आदमियों ने बताया था। खिड़कियों पर मसनूई स्ट्रॉबेरी की लड़ियाँ और दबीज सफ़ेद पर्दे लटके हुए थे। इसके उन्नाबी लबों पे एक मखसूस तबस्सुम उभरा। वो पर्दे हटाकर कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ मेहंदी और इसकी सांसों की मिली जुली खुशबू बहराम मलिक के नथनों से टकराई। लैम्प की मध्यम रोशनी में वो चलता हुआ इसके पास आया। जहाज़ी साइज बेड पर वो सिल्क की पिंक नाइटी में दुनिया जहान से गाफिल मीठी नींद की आगोश में थी। बहराम मलिक की नज़रें इसके हाथों पर लगी मेहंदी पर पड़ी। इसके मुस्कुराते लब सख्ती से आपस में पेवस्त हो गए और वो गुस्से भरी नज़रों से हानिया खान को देखने लगा। लैम्प की सुनहरी सुर्ख रोशनी में इसके मासूम नकोश किसी गुलाब के ताज़ा फूल की तरह निखरे हुए थे। वो चांद नकर की शहजादी मालूम हो रही थी। दिल बेसाख्ता इसे छूकर महसूस करने की ख्वाहिश करने लगा। इसकी छोटी सी नाक पे धरा गुस्सा और माथे पर बल देखे तो बहराम के लब एक बार फिर मुस्कुराए। इसे फुर्सत में सराहने का इरादा करते हुए इसने आहिस्ता से लैंप ऑफ किया और गन निकाल ली। वो इसके इतना करीब बैठा था कि दोनों में हाथ भर का फासला ही रह गया था। नींद में किसी की मौजूदगी अपने आसपास महसूस करके अचानक उसकी आंख खुली। नींद से बोझल सिया खमदार पलकों की बाढ़ झपक झपक कर खाली और जहनी से इसे देखने लगी। कौन है? अंधेरे में एक साया और इसकी सांसों की तपिश अपने करीब महसूस करके खौफ से हकलाई। बहराम मलिक ने नज़रें इसकी तरफ उठाईं। इस अंधेरे में हानिया खान की बड़ी बड़ी नींद के खुमार से भरी आंखों में बहराम मलिक ने अपनी नीली सर्द आँखें गाड़ दी। हानिया की सांस अंधेरे में इसकी चमकती आंखें देखकर रुक सी गई। कौन हो तुम? खौफ से इसके हाथ पांव सुन पड़ के। इतनी रात में किसी अनजान को अपने कमरे में मौजूद की, वो भी अपने इतने करीब कि इसकी सांस से भी खुद पे महसूस कर रही थी। जिसम में सनसनी खेज लहर दौड़ गई। तुम्हारा होने वाला शौहर। बहराम ने झुक कर इसके कान में सरगोशी की। हानिया को रोना आ गया। वो अपनी सिसकियाँ अपने हलक में ही दबाने की कोशिश करने लगी। वो बहादुर लड़की इस वक्त भीगी बिल्ली बनी हुई थी। ये ख्वाब था या हकीकत, इसके शल असाब समझ नहीं पा रहे थे। मज़ीद जान तो इसके अल्फाज ने निकाल दी थी। इसके खूबसूरत नैनों से आंसू फिसलते इसके रुखसारों पर गिरते इसके बालों में जज्ब हो रहे थे। डे, इससे पहले कि वो चीखों पुकार करके सबको इकट्ठा करती, बहराम ने बहुत आहिस्तगी से इसके मुंह पर अपना भारी हाथ जमा दिया। हनी शोर नहीं। बहराम ने इसके कान में सरगोशी की। हानिया इसके लम्प्स पर मचल सी गई। वो इसकी गिरफ्त में मचलती साकित हो गई जब बहराम ने इसके माथे पर पिस्टल रखी। कहा ना, शोर नहीं हनी। इसने सर्द लहजे में इसके कान में सरगोशी की। हानिया खौफ से सफ़ेद पड़ गई। इसका वजूद खौफ से सर्द पड़ता हिलने से इनकारी हो गया था। अलबत्ता आंखें ज़ारो कतार बरस रही थी। उठो, इसने हुक्म दिया, जिस पे हानिया ने नफ़ी में सर हिलाया। बहराम ने इसे गुस्से से देखा। मैंने कहा ना, उठो। ठिठरा देने वाला लहजा पर हानिया बेआवाज़ रोती उठ गई। बहराम मुस्कुरा दिया और अपने ऊपरी जेब से पेपर्स और पेन निकाला और मोबाइल की रोशनी इसके गुलाबी चेहरे पर टिका कर दोनों चीज़ें हानिया के सामने की। साइन करो, हमारा निकाह है आज और अभी। इसने पेन हानिया की कपकपाती उंगलियों में थमाया। वहशत ज़दा सी हानिया की नज़रें इसके दस्ताने पहने हाथों पर गईं। मैं तो ऐसा नहीं करूँगी। तुम मेरे डैड को नहीं जानते। इन्हें जब मालूम होगा तुम्हारी जान ले लेंगे। दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर फिर से रो पड़ी। कल सुबह उसका हादी के साथ निकाह था। सारी तैयारियां हो चुकी थी। इसके पापा और अंकल कितने खुश थे। हनी, मैं जानता हूँ तुम्हारे डैड को और तुम्हें भी अच्छी तरह। अब तुम इन पेपर्स पर साइन करो। गन माथे से सरकती इसके भीगे गाल तक आई और हानिया के हाथ पांव ठंडे पड़ के। वो इसके बिल्कुल पास बैठा था। अगर वो ज़रा सी मुज़ाहिमत करती या चीखती
तो दूसरे ही पल वो इस पे हमला कर देता। गन तो पहले ही इसके निशाने पर थी, सिर्फ ट्रिगर दबाने की देर थी और वो सीधा ऊपर। लो साइन करो, इससे पहले कि मेरा इरादा ही बदल जाए। इसकी गर्दन पर गन रखते सर्द आवाज़ में बोला। हानिया के पास साइन करने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा। इसने कांपती उंगलियों से पेन थामा। तुम कौन हो, ये तो बता दो। इसने भारी आवाज़ में इल्तजा की, जिस पर बहराम मुस्कुरा दिया। बताऊंगा हनी, जब तुम्हें रुखसत करवाने आऊँगा तो बताऊंगा। गन से इसका चेहरा ऊपर करते सरगोशी में बोल रहा था। बहराम ने इसका सर ऊंचा करते इसके पेन वाला हाथ पकड़कर साइन वाली जगह पर रखा। अब साइन करो, शाबाश। इसके कहने पर ना चाहते हुए भी एक अनजान शख्स के साथ रात के अंधेरे में निकाह जैसे पाक रिश्ते में बन गई, चाहे ज़बरदस्ती ही सही। अब इसका निकाह हो गया है और निकाह पर निकाह नहीं हो सकता। वो अचानक ही आया था और इससे निकाह करके इसे रोता बिलखता छोड़कर चला गया था। तो क्या वह जानता था कल इसका निकाह है? वो जाते हुए कह कर गया था कि अभी वो इसकी अमानत है, वो जल्द ही आएगा इसे अपना बनाने। वो कौन था और इसे इस तक पहुंचने से इसके बाप की सख्त सिक्योरिटी फोर्सेस भी ना रोक पाई। वो आराम से आया और इससे निकाह करके चला गया। ना इसे बताया कि वो कौन है, इसका क्या नाम है, वो कहाँ रहता है। बस आया, डराया, धमकाया और गन पॉइंट पे निकाह करके चला गया और वो इसे रोक भी नहीं सकी। इस सब के दौरान वो पेपर्स पर ध्यान ही ना दे पाई कि वो सच में निकाह नामा या सिर्फ सुबह इसका निकाह रुकवाने की कोई चाल। हनी बेटा, दरवाज़ा खोलो, हारिस साहब ने बेबसी से कहा। नो। वो बेड पर बैठी मुलाजमीन की जगह अपने डैड की आवाज़ सुनकर दहाड़ी। चले जाएं वरना मैं ख़ुद को ख़त्म कर लूँगी। गो प्लीज़, वो भारी आवाज़ में चीख रही थी। हारिस साहब को तशवीश होने लगी। वैसे तो वो अक्सर ऐसी हरकतें करती रहती थी, कोई बात मूड के ख़िलाफ़ हो जाए तो यूं ही दरवाज़ा बंद करके बैठ जाती थी। पर आज इसकी रोई रोई भारी आवाज़ हारिस साहब को परेशानी घबराहट में मुब्तला सी कर गई। कुछ ही घंटों बाद इसका निकाह था। खान मेंशन दुल्हन की तरह सजा हुआ था और ऐसे में इसका यूं कमरा बंद हो जाना इन्हें परेशान कर गया था। अभी तो पार्लर से लड़कियां इसे तैयार करने के लिए आने वाली थी। ये निकाह आम नौयत का नहीं था। मुल्क के मशहूर बिजनेस टाइकॉन फवाद चौहान के बेटे और होम मिनिस्टर हारिस खान की बेटी के निकाह में दुनिया भर के अमीर कबीर लोग शिरकत की गर्ज से आने वाले थे। फिर ऐसे नाजुक वक्त में उनकी बेटी का रवैया। हारिस साहब ने अब्दुल्ला को दूसरी कीज़ लाने का इशारा किया तो वो लंबे डग भरता वहाँ से चला गया। लीजिए सर। अब्दुल्ला मुअद्दब सा कीज़ उनके सामने करते पीछे हट गया और हारिस साहब ने इन्हें जाने का इशारा किया। खुद डोर लोग खोलते हुए अंदर दाखिल हुए। सामने वो आम से सोट में घुटनों में मुँह दिए बैठी हौले हौले लरज रही थी। हनी बेटा, क्या हुआ मेरी जान? हारिस साहब लपक कर इसके पास पहुँचे थे। इसके पास बैठकर इसका चेहरा ऊपर उठाया तो धक से रह गए। अपनी लाडली कुल कायनात, अपनी हानिया बेटी की सुर्ख सूजी भीगी आंखें और बुखार में तपता वजूद देखते दिल जैसे साकित सा हो गया। हौले हौले रस्ती वो इन्हें मौत के करीब कर गई। हानिया ने अपने बाप को देखा। इसके साथ एक रात में क्या से क्या हो गया था, वो इस बात से अनजान थे। वो सारी रात रोती रही थी, एक पल भी खौफ से सो नहीं सकी थी। कहाँ थे आप रात को डैड? थोड़ी पर मौजूद इनके हाथ झटकती वो गुस्से से पूछने लगी। हारिस साहब इसके सवाल पे हैरान हुए। बेटा अपने रूम में था। उन्होंने इसका चेहरा अपने हाथों के प्यालों में भरा। हानिया सिसक उठी। हुआ क्या है मेरी जान? अपने डैड को क्यों तड़पा रही हो? बताओ ना, क्या हुआ? बचपन की तरह फिर कोई बुरा ख्वाब देखा है? उन्होंने इसे सीने से लगाते पूछा तो हानिया अपने लब सख्ती से काटने लगी। वो कैसे इन्हें बताती कि रात को एक अनजान शख्स इसके रूम में आकर इससे निकाह नामे पर साइन लेकर इसे अपनी अमानत बनाकर चला भी गया और वो कुछ भी नहीं कर सकी। डैड, कर्ब से इन्हें पुकारती वो इसी तरह रोने लगी। हारिस साहब एक बार फिर घबरा उठे। उन्होंने इसके गिर्द अपनी बाहों का हिसार कायम करके इसे अपने तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया। पर क्या फ़ायदा? अब इस तहफ़्फ़ुज़ का जो होना था वो तो हो गया था। अब वो एक अनजान शख्स की बन चुकी थी। क्या हुआ हनी? प्लीज़ टेल मी माई बेबी। हारिस साहब इसके माथे पर लब रख कर इसका सर सहलाते पूछने लगे। डैड, आज रात को? सिसकते हुए हारिस साहब की शर्ट को मुट्ठी में दबोचती बहुत हिम्मत से इस रूह फरसा मंजर को याद करती हुई बोली, यस माय बेबी। क्या हुआ रात को? क्यों मेरा बहादुर बेटा इतना डरा हुआ है? हारिस साहब ने इसका अपने सीने में छुपा चेहरा उठाया और गाल साफ करते मोहब्बत से बोले, डैड, वो रात को कोई आया था मेरे रूम में और वो लब दबाकर हिचकियाँ लेने लगी। हारिस साहब शशतर से इसे देखते रह गए। कौन था? बेटा क्या हुआ था? वो घबरा गए, दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया। डैड, इसने बरसती हुई आंखों से उन्हें कहा। गन पॉइंट पे मुझसे निकाह नामे पर दस्तखत भी ले लिए। वो बात मुकम्मल करती चेहरा हाथों में छुपा कर फिर से रोने लगी।
हारिस साहब साकित से बुत बने बैठे से रोता हुआ देख रहे थे। इनमें इतनी ताकत नहीं रही थी कि इसे चुप करवाते या कोई दिलासा देते। कौन था वो हरामखोर? अचानक ही वो दहाड़े। रोती हुई हानिया सहम सी गई। बताओ मुझे कौन था? किसकी हिम्मत हुई हारिस खान की बेटी को डराने धमकाने की? वो हरामज़ादा मेरे घर में घुस आया और किसी को खबर भी ना हुई। गैज़ो गज़ब के आलम में इनकी दहाड़ पूरे मेंशन में गूंजी। डैड, मैं नहीं जानती। हानिया ने नफ़ी में सर हिलाया तो हारिस साहब ठटके। तुमने देखा था इसे? उन्होंने दूसरा सवाल किया। इसने नफ़ी में सर हिलाया। लाइट ऑफ थी, कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। वो बेबसी से बोली। हारिस साहब ने बेयकीनी से इसे देखा। फिर निकाहनामे पर साइन कैसे किए? हैरानगी से बोले। इसकी मोबाइल की टॉर्च में इसने खुद हाथ पकड़कर साइन करवाए। हारिस साहब बुत से बन गए। निकाहनामे पर नाम देखा था इसका? कुछ तवक्कुफ के बाद उन्होंने तीसरा सवाल पूछा। हानिया का सर नफ़ी में हिला। हारिस साहब लब भींच गए थे। 1 मिनट, गार्ड से पूछते हैं। हारिस साहब इसके सर पे हाथ रखकर उठे। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था। कमरे में अंधेरे के बाद चेहरा नहीं देखा, पर नाम तो देखा होगा ना निकाहनामे पे, जब इसने साइन करवाए थे। सोचो में गोम माथे पर बल लिए, लब भींचे, सीढ़ियाँ उतरते नीचे आए, गार्ड्स को बुलाया। रात में तुम सब कहाँ थे? वो गुस्से से पूछने लगे, जिस पर सामने खड़े मुअद्दब से गार्ड्स एक दूसरे को नासमझी से देखते हारिस साहब की जानी मुतवज्जा हुए। सर ड्यूटी पे? सब एक ज़ुबान बोले। तुम सब ड्यूटी पे थे तो वो आदमी, वो चोर कैसे घुस आया अंदर? बेध्यानी में मुंह से निकलती बात को पलट गए। जानते थे अगर ये बात मीडिया तक पहुंच गई तो किस मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, फिर उनकी बेटी का मुस्तकबिल क्या होगा। ये सोच कर ही उनका दिल घबरा रहा था। आई एम सॉरी सर, रात को तो कोई नहीं आया था, आप सबसे पूछ सकते हैं। दूसरा भी बोला। हारिस साहब ने अपना माथा मसला। क्या करें, कैसे? क्या वो फवाद से बात करें? फिर कुछ सोचते उन्होंने हिम्मत करके मोबाइल निकालते गार्ड्स को जाने का इशारा किया और फवाद चौहान का नंबर मिला दिया। दूसरी तरफ सलाम के जवाब पर इन्हें घर आने का कहते हारिस साहब ने फ़ोन बंद किया। हानिया उठकर अपना एक लिबास निकालती बाथरूम में घुस गई और थोड़ी देर में फ़्रेश होकर बाहर निकली। अपने बिखरे बालों को संवारते इसकी नज़र अपने हाथों पर गई, जहाँ कल हादी के नाम की मेहंदी लगी थी। और वो थोड़ा बहुत संभल गई थी। अपनी बुज़दिली के बारे में सोचकर वो अब कोड़ रही थी। क्या ज़रूरत थी मौत से डर कर साइन करने की? पर यह भी तो सच था, जब मौत सामने हो तो अच्छे अच्छे बेबस हो जाते हैं और ख़ुद को बचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। इसकी जगह कोई भी होता तो यही करता। कैसा बुरा साया था इसके ऊपर, कैसे वो इसे अपनी अमानत बना करके चला गया। मैं तुम्हारी अमानत नहीं हूँ बास्टर्ड। वो परफ्यूम की बोतल आईने पे मार कर चीखी और बेड पर बैठ कर इस अनजान शख्स की लगाई आग में जलने लगी। हारिस साहब ने कमरे से आती आवाज़ों पर सर उठाकर इस तरफ से देखा। सर, फवाद चौहान साहब आए। गार्ड की इत्तला पर उन्होंने गर्दन मोड़ी और सर हिलाकर इसे जाने का इशारा किया। क्या हुआ हारिस, खैरियत? सुबह सुबह बुला लिया। फवाद साहब परेशानी से कहते अंदर आए। उनके पीछे पीछे हादी भी था। दोनों हारिस साहब से मिलते हुए सामने पड़े सोफे पर बैठ गए। हारिस साहब को मुलाजमों की मौजूदगी में बात करना सही ना लगा तो वो इन्हें अपने साथ लेकर अपने कमरे में आ गए। कुछ खैरियत नहीं है फवाद, हमारा पता नहीं कौन सा दुश्मन है जिसने रात को हानि के रूम में आकर इससे ज़बरदस्ती निकाहनामे पर साइन ले लिए हैं, और जिस तरह वो चोरों की तरह आया था वैसे ही चला भी गया। गार्ड्स तक को भनक तक नहीं पड़ी। इनका कहना है कि वो सारी रात ड्यूटी पे थे, ना कोई अंदर आया ना ही बाहर गया था। हारिस साहब की बात पर दोनों बाप बेटा इन्हें हैरत से देखने लगे। तुम होश में तो हो हारिस, क्या कह रहे हो? फवाद साहब बेयकीनी से बोले। यही तो बात है फवाद कि इस सब कहते मैं ख़ुद को एक पागल महसूस कर रहा हूँ। हारिस साहब दोनों हाथों में सर थाम गए। हारिस साहब की बात पे दोनों हैरत बेयकीनी के आलम में गंग से बैठे थे। क्या इसने देखा इस आदमी को? हानिया को बुलाओ। फवाद साहब होश में आते हुए बोले। हानी ने नहीं देखा इसे, क्योंकि कमरे में अंधेरा था, लाइट ऑफ थी और ना ही वो इसका नाम जान सकी। वो एक इंतहाई शातिर इंसान था जो आया और बग़ैर सबूत छोड़े ये सब कर गया। हारिस साहब के कहने पर फवाद ने हादी की तरफ देखा, जिसके चेहरे पे गुस्से की लाली थी। फवाद साहब और हारिस साहब ने सारे कैमरे चेक किए। वहाँ गार्ड्स और पहरा देते डॉग्स के अलावा कुछ भी नहीं था। ये क्या मजाक हुआ था उनके साथ? वाह अंकल, क्या प्लान बनाया आपकी बेटी ने। हादी की बर्दाश्त का मादा जब ख़त्म हुआ ताली बजा कर बोला। परेशान से बैठे हारिस साहब फवाद साहब ने इसे देखा। ये क्या हरकत है हादी? फवाद साहब ने सख्त लहजे में इसे बाज रहने का इशारा किया। डैड, ये मेरी हरकत नहीं, इनकी बेटी का नाटक है। कल रात ही इसने कहा था कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती, वो मुझ पर थूकना भी पसंद नहीं करती। इसके नज़दीक मेरी कोई औकात नहीं। कुत्ता हूँ मैं, दुम हिलाता इसके आगे पीछे फिरता हूँ। हारिस साहब को देख कर बोला। हादी बेटा, मगर वह ऐसा क्यों करेगी?
انہوں نے فواد کی آنکھوں میں سوچ دیکھ کر پہلو بدلا، کیونکہ انکل میں اسے پسند کرتا ہوں، وہ نہیں، چیپ انسان ہوں میں، 3rd کلاس ہوں، اس کے لائق نہیں ہوں، وہ چٹک کر بولا۔ بس، فواد صاحب اس کی آواز غصے سے بلند ہوتی دیکھتے دہاڑ کر بولے اور پریشان سے بیٹھے حارث صاحب کی جانب مڑے۔ ہادی لب بھینچ کر رہ گیا۔ حارث، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ شاید اس نے کوئی برا خواب دیکھا ہو، آخر کوئی ثبوت بھی تو نہیں ہے اس کی بات کا، کوئی نام نشان نہیں، تو کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہانیہ دماغی طور پر راضی نہیں تھی اس نکاح کے لیے، اس وجہ سے شاید اس نے کوئی خواب دیکھ لیا اور وہ ڈر گئی ہو۔ پہلے بھی تو ایسے خواب دیکھ کر ڈر جاتی تھی۔ فواد صاحب کی تفصیلی بات اور سمجھانے میں کچھ مطمئن ہوئے، پر وہ ہادی کی بات پہ الجھے ہوئے تھے۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، شاید اس نے کوئی برا خواب دیکھا ہوگا۔ نہیں ہے کوئی برا خواب، وہ حقیقت تھا، آپ کو یقین کیوں نہیں ڈیڈ؟ اچانک وہ دروازے سے نمودار ہوئی، سرخ سوجے چہرے کے ساتھ چلائی تھی۔ ہادی اور فواد صاحب نے اسے حیرت سے دیکھا، بولے کچھ نہیں۔ ہنی، کیا تم نے ہادی کو کہا تھا تمہارے لائق نہیں، تم اسے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ ہانیہ نے ٹھٹک کر سامنے بیٹھے ہادی کو دیکھا، جو اس کی طرف ہی متوجہ تھا۔ اوہ، تو اس گھٹیا آدمی نے آپ کو یہ کہا ہے کہ یہ میرا خواب ہے، پر یہ خواب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ ہاں، یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گی، تب تک شادی نہیں کروں گی جب تک آپ مجھے اس انجان شخص سے طلاق نہیں دلواتے۔ اور تم؟ پھر بھی میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ جسے میری بات پر یقین نہیں تو جائیں بھاڑ میں ایک نکاح کے اوپر دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ غصے کی حالت میں جو اس کے منہ میں آیا وہ بدلحاظی سے کہتی واپس سیڑھیاں طے کرتی اپنے روم میں بند ہو گئی۔ آپ نے دیکھا انکل، اسے مجھ سے نکاح ہی نہیں کرنا تھا، یہ تو اس نے صرف ایک بہانہ بنایا تھا۔ ہادی مٹھیاں بھینچتا ایک ایک لفظ چبا کر گویا ہوا۔ پھر کیا سوچا تم نے حارث؟ سگار کے گہرے کش لیتے فواد نے استفسار کیا۔ وہ اپنے بیٹے کی بے عزتی پہ بمشکل خود پہ ضبط کیے بیٹھے تھے۔ کچھ نہیں، جیسے چل رہا ہے چلنے دو، نکاح کی ساری تیاریاں ہو گئی ہیں، اب صرف شام کو نکاح کی رسم ادا کرتے ہیں۔ حارث صاحب کی بات پہ ہادی کے چہرے کی سرخیاں واپس لوٹ آئیں۔ تمہارا آئیڈیا تو فلاپ ہو گیا ڈارلنگ، اب میرا آئیڈیا، اس نے سوچا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ فواد صاحب کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اپنی بیٹی کے اس اچانک رویے سے حارث صاحب بہت پریشان تھے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھے اس پہ سوچ بچار کر رہے تھے، اور پھر وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ان کی بیٹی سارے مہمانوں کے سامنے اپنے باپ اور فواد صاحب کو شرمندہ چھوڑ کر انگلینڈ چلی گئی تھی۔ اس نے انہیں کسی کے سامنے نظر اٹھانے کے قابل بھی نہیں چھوڑا تھا۔